میری آپ بیتی، میری زبانی، میری کہانی، میری زبانی، پرم ستیہ پر آدھارت میری کہانی، آپ کے لیے، آپ کے پورے پریوار کے لیے۔ اس پہ سندیہ کرنا پاپ ہے، گناہ ہے، اپرادھ ہے۔ نسندیہ جو کچھ کہا جا رہا ہے وہ ستیہ پر آدھارت ہے، سنیں، سمجھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وارسی وبرکاتہ۔ سلسلے کے جناب، آپ کا نام؟ نثار احمد وارسی۔ نثار احمد وارسی صاحب، آپ کا تعلق رائے بریلی سے ہے اور آپ سلسلہ وارثیہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ سرکار سیدنا گوھر شاہی سے اب کتنے سال پہلے وابستہ ہوئے؟ جی لگ بھگ 19 مہینے ہو گئے۔ سرکار گوھر شاہی سے آپ کیسے وابستہ ہوئے؟ کیا ان کی باتیں آپ کو ایسی لگیں کہ جو آپ ان سے وابستہ ہو گئے، جبکہ آپ سلسلہ وارثیہ میں بہت پہلے سے ہیں؟ یہ قرآن کے آیت کے ذریعے، یعنی کہ اللہ کے فرمان کے ذریعے ہم بھٹک رہے تھے، تلاش تھی، کیونکہ جو سمجھ میں آتا تھا اسی کا ہم سوال کے لیے تراشتے تھے، ڈھونڈتے تھے عالموں کے بیچ میں، اچھا، حدیثوں کے ذریعے، قرآن کے ذریعے، علماء کے ذریعے، لیکن سوال جو ہمارے ہوتے تھے ہم کو مطمئن جواب نہیں ملتے تھے۔ اور سوال کچھ اس طریقے سے تھے کہ اللہ ہے، کہاں ہے، کیسے ہے؟ تو کہتے کہ کوئی روشنی ہے، نور ہے۔ تو ان کا کہنا تھا کہ وہ نور ہے، ہم کہتے ہیں کہ نہیں، کسی چیز سے نکل رہی جو نکل کے آ رہی باہر وہ نور ہے، لیکن جس چیز سے نکل رہی وہ خدا ہے۔ ہم کو روشنی نہیں، روشنی والے تک، جہاں سے روشنی نکل رہی ذات تک پہنچنا۔ جی جی۔ عالموں کے ساتھ آپ کا کیسا لڑائی ہمیشہ ہوئی، ہم یہ سمجھتے تھے، یعنی آپ کے نظریات ان سے میل نہیں کھاتے تھے؟ بالکل نہیں۔ اچھا، یہ بتائیے کہ سرکار گوھر شاہی نے آپ کو ایسا کیا عطا فرمایا کہ آپ ان سے مطمئن ہو گئے؟ جتنے ہمارے سوال تھے اللہ کو دیکھنے کے، ہم کو دکھا بھی دیے، ملا بھی دیے، بات بھی کروا دیے، سب کچھ عطا کر دیے۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اب ہم اپنی زندگی کو، جو بھی سانسیں بچی ہے، اس حق کے ساتھ ہم رہنا چاہتے ہیں۔ آمین۔ ابھی تک تو ہم سوچ رہے ہم اکیلے دنیا میں لڑ کوئی رہے ہیں۔ ایسا واقعہ بتائیے جو آپ کے ساتھ پریکٹیکل گزرا ہو، جو ہمارے سامعین اور ناظرین کو آپ بتانا چاہتے ہیں، جس سے ان کو امپریشن ملے، ان کے جذبات ابھریں کہ یہ سرکار سیدنا گوھر شاہی سے یہ بھی فیض حاصل کر سکیں۔ کوئی ایسا واقعہ بتائیں جو آپ کے ساتھ گزرا ہو سرکار گوھر شاہی سے نسبت پانے کے بعد۔ ہم تو آزماتے ہیں، ہم اپنے طریقے سے آزماتے ہیں، اور ہمارے نظر میں جو کھڑے اترتے ہیں، سچ اترتے ہیں، ہم انہیں کو پکڑ لیتے ہیں۔ ہم نے پکڑ لیا ہے، ہم سب کچھ پا گئے۔ ہم یہ چاہتے ہیں ہماری طرح کوئی ایسا واقعہ آپ کے ساتھ گزرا ہو روحانی طور پر بتانا چاہیں تو ضرور بتائیے پلیز۔ جو قرآن کے الفاظ ہیں، جو اللہ کا جواب ہے، وہ ہم سمجھ نہیں پاتے تھے۔ اب وہ ساری چیزیں ہمارے سمجھ میں آتی ہے۔ آپ ہی سب کچھ ہم کو، جیسے سنتے آئے حدیث میں کہ اللہ آپ کی زبان بن جائے گا، سنتے تھے، آج ہم خود پریکٹیکل اور پریکٹس میں لگے۔ ماشاء اللہ سے سرکار کا دیدار سیدی جی عطا ہوا۔ سرکار جی پوری ہماری ہر طریقے سے مدد کرتے ہیں، ہر لمحہ، ہر پل۔ کتنی بار سرکار اور سیدی یونس الگوہر کا دیدار ہوا آپ کو؟ کم سے کم فرسٹ سیدی یونس الگوہر جی سے دیدار ہوئے تھے، اور آپ کی جو کیفیت میں ملاقات ہوئی تھی، وہ کیفیت ہمارے اندر پوری طریقے سے
समा चुकी है। आज हमारी हालत हम जो महसूस कर रहे हैं बिल्कुल सेम, यानी कि मिशन, दुनिया को फैज़ मिले, इस सच्चाई तक दुनिया पहुँचे, किसी भी कौम के लोगों, कोई भी इंसान, हर इंसानियत के लिए ये हमारा पैगाम है और हमारी कोशिश रात और दिन की यही रहती है। क्या कहना चाहेंगे जो लोग सरकार गौहर शाही और सैयदी यूनुस अल गौहर की मुखालफत करते हैं, उनके लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? वो सामने से बात करके मुखालफत नहीं कर सकते, पीठ पीछे बुराई करना ये मुखालफत नहीं है, सामने रूबरू होना इसे उसको मुखालफत कहते हैं। और हक को कोई झुटला नहीं पाया, ना कोई झुटला सकता है। झुटला तो रहे हैं, लेकिन लोग यूट्यूब पर अपना बयान देते हैं, फतवे निकालते हैं और जो है कि लोगों से कांटेक्ट करके उनको मिसगाइड करने की कोशिश करते हैं। जो सरकार गौहर शाही पर ईमान रखते हैं उनसे गुफ्तगू करके उनको मिसगाइड करने की भी कोशिश किया बहुत से लोगों ने। तो ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? वो लोग पूरी तरीके से, जैसे कहते हैं, जाहिल और अंधे। ये जाहिल भी हैं, अंधे हैं, क्योंकि उनके पास सिर्फ जाहिरी शब्द, ये जो दुनियावी माना है वही उनको तो पता है, दूसरा उनको वहाँ तक रिसाई है नहीं। नूर क्या है, रोशनी क्या है, ज़ाहिरी बातिनी क्या है, इन चीज़ों जो अनजान है, सिर्फ उन्होंने सुन रखे हैं शरीयत को। एक बात ये बताइए, क्या सरकार गौहर शाही की तालीम शरीयत, तरीक़त, हकीकत से मैच करती है या इससे हटके कुछ बताते हैं? टोटल तो कहीं शक नहीं, मुकम्मल। तो जब सब कुछ शरीयत, तरीक़त, हकीकत, मार्फत वगैरह जो कुछ इस्लाम में उसी के मुताबिक बताते हैं, तो ये उलमा उन पर फतवा क्यों लगाए हैं और उनकी मुखालफत इतना क्यों करते हैं? क्या कहना चाहेंगे, ये कौन लोग हैं? ये ना समझ जितने लोग होते हैं वही फतवा लगाते हैं। जहाँ से भी हवाले और मिसालें हुई हैं, सबसे तबरेज़ के ऊपर जो फतवा लगा था उस समय के, आज के लोग बताते हैं कि जुनैद बगदादी ने आपने लगाए थे फतवा, लेकिन आज आपकी कैफियत, जब हम जुनैद बगदादी को जाने समझे तो आज की आपकी कैफियत कुछ और है, पूर्ण है। लेकिन जिस समय आपने फतवा दिया था उस समय आप सिर्फ आलमी दीन ही थे, ज़ाहिरी। नाज़रीन किराम, ये कैफियत, ये जुनून, ये जज्बा, ये इश्क, ये मोहब्बत, ये वलवला आप देख रहे हैं। ये कोई करामत नहीं है, ये कोई मौजज़ा नहीं है, ये तो वो करम है जिस पे अल्लाह और रसूल करम फरमा दें। जी हाँ। और ये इनका नसीब है कि ये सैयदना गौहर शाही के कदमों तक पहुंच गए। ये बताइए कि आप सरकार गौहर शाही को क्या मानते हैं? सब कुछ, जो भी नाम दे दे कम है। आपकी नज़रों में जो सबसे बड़ी हस्ती जो नाम है, हम वो नाम और वो जगह देते हैं। आम तौर से ये दुनिया को बताया जा रहा कि सरकार सैयदना गौहर शाही मिन जानिब अल्लाह हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम है। आप इस बारे में क्या कहेंगे? पूरी तरीके से हैं, हक हैं। हम यकीन नहीं, हमने देखे हैं तब यकीन किए हैं। बेशक हम सुन के कम मानते हैं, सुनने के बाद तलाशते हैं, जब देख लेते हैं इन आंखों से। चाँद में जो चेहरा है सरकार गौहर शाही का, आपने देखा? जी। हजरे अस्वद में जो चेहरा है, आपने उसका भी मुआयना किया? हजरे अस्वद, जी, यहाँ पे जो यूट्यूब पर है, जहाँ हर चीज़ में हमने मुआयना किया है और हर चीज़ के सबूत और यकीनी ईमान हमारे अंदर मौजूद है। बेशक बेशक। चाँद सूरज क्या गवाही देंगे तेरी ऐ गौहर, है सबूते हक तेरा इस दिल में आ जाने का नाम। ये जो शख्सियत बैठी हुई है, आप इन्हें यूं ही मत समझ लीजिएगा। जिंदगी गुजर गई इस राह में चलते चलते, सुए किस्मत की सरकार गौहर शाही का दर मिल गया और जिंदगी बदल गई, हकीकत तक पहुंच गई और सरकार गौहर शाही ने इन्हें थाम लिया। आज ये जो कुछ बयान कर रहे हैं, ये कोई मनगढ़ंत हवा महल या कोई सुनी सुनाई कहानी नहीं है, ये इनकी आप बीती है। आप इनसे एक बार मिलकर देखिए, अगर ये गौहर में रंग न दें तो फिर शिकायत करना।
दावत है आप तमाम लोगों को जो रूहानियत में दिलचस्पी रखते हैं, जो टेस्ट करना चाहते हैं कि सरकार गौरशाही का फैज़ किस तरीके से हासिल होता है, वो आएं और जिक्र कल्ब की दौलत हासिल करें। ये इब्तिदाई तालीम है, इंतहा तो आप क्या जाने। ये नज़रुल बशर का फैज़ है। टेलीफोन उठाएं, नंबर डायल करें। फ़ोन पर भी अगर आप जिक्र की इजाज़त लेंगे तो दीदार रसूल तक पहुंच जाएंगे। ये सरकार गौहरशाही का वादा है। जैसे ही आपका कल्ब पाक होगा, सरकार आपको आपकी ख्वाहिश के मुताबिक उस नूरानी बारगाह में पहुंचा देंगे जिसकी आप तमन्ना करते करते या तो अधेड़ हो गए या बुढ़े होके आप आखिरी सांस ले रहे हैं। 40 साल से पहले पहले इस राह में जो चलता है, कामिल मुर्शिद मिल गया तो कामयाबी, वरना जिंदगी बर्बाद। सरकार गौहरशाही का वादा है, तू 60 साल का हो जाए, 70 का हो जाए, गौहर की बारगाह में आ जा, तेरी मुराद पूरी हो जाएगी। यहाँ तसर्रुफ की कोई लिमिट नहीं है। लिमिट नबियों और वलियों के लिए होती है, इमाम मेहदी के लिए नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया सूफी साहब, आपने इतनी कीमती मालूमात दी। नाज़रीन किराम, अगर आप इनसे गुफ्तगू करना चाहते हैं मज़ीद, तो इनके नंबर पर आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। अलरा टीवी आप लोग देखिए, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर और बहुत से सोशल मीडिया हैं जिस पर अलरा टीवी का प्रोग्राम आता है, तालीमात बयान की जाती है। यहाँ कोई चंदा नजराना नहीं है, बस टेलीफोन करिए, रब के तलबगार बन कर आइए और अपना रब लेकर जाइए। ये बारगाह गौहरशाही है, यहाँ से कोई खाली नहीं जाता। इंशाअल्लाह जैसे ही आप फ़ोन करेंगे, सरकार की मदद से आपको जिक्र कल्ब की इजाज़त हासिल हो जाएगी और आप दाखिली उम्मती, असली उम्मती बनेंगे और सरकार इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का साथ देने की तौफीक अता हो। यही हमारी दुआ है बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।